Hi Shivani, welcome to Zenonco.io and Love Heals Cancer. As I told you, we do cancer healing journey sessions in which we share your journey as a survivor and caregiver to the world so that people who are still fighting this battle can get some inspiration and motivation from it. So it's a pleasure to host you today. Thank you for doing this. And how are you doing? I'm doing good, Ritika. So I think like it's a very good opportunity. I feel so because I haven't talked about this to anyone. I haven't shared any experiences of mine, even to my family also. So I think this is something which I think it's a great opportunity, and I I mean I don't know. I'm overwhelmed because when you come to this phase again, remembering the old times, the phase which you have been through. So I think I'll try my best to contribute. So thank you so much for the opportunity. No, seriously, it's your journey, and I'm glad that you decided to share it with us. Uh, it's not that hard. We'll just go easy on you. So why don't you just start with the symptoms and diagnosis? So firstly, so I was a caregiver for my mother. My mother was diagnosed with colon cancer exactly a year before. That was 14th June 2020. And as we know that the situation was very bad due to the COVID-19. I'll just start with how exactly we came up to the diagnosis and what was the initial phase and what was the phase when we got my mother got diagnosed with cancer, and what was the phase after that, after the diagnosis. Unfortunately, we lost her in August. So it was not a large span of time which we got in our hand because uh, I think it was purely God's will. So I'll just start with what exactly the symptoms were. Um, so in January 2020, यूजुअली क्या होता है कि हम कुछ ऐसा हैवी खा लेते हैं लाइक दाल बाटी या कुछ, तो जनरली हमको एसिडिटी हो जाती है. आई फील सॉरी, जस्ट टू इंटरप्ट, मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी बिकॉज आई फील मोर कंफर्टेबल एंड आई फील मोर कनेक्टेड. It's totally इज दैट ओके? yeah, it's totally fine. Because I feel more relatable if I talk in Hindi. Uh, No, so, no, uh, whatever is comfortable to you. yeah. So in 2020 Jan, क्या हुआ था कि मेरी मम्मी ने दाल बाटी खा ली थी, एंड यू नो कि वो एक थोड़ा हेवी फूड रहता है, तो एसिडिटी होना स्टार्ट हुई. तो दिस वाज द फर्स्ट सिम्टम. यूजुअली एसिडिटी होती है, हम इनो पी लेते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार, घर के ही थोड़े दो चार नुस्खे हमने लगा लिए, ट्राई कर लिए, तो वो सब साइड हो गई. थोड़े टाइम ऐसा चलता रहा. फिर मैं एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती थी, तब मैं जॉब कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ बट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी. तो यूजुअली जितना फ़ोन पे बात हो पाती थी तो बोल देते थे कि डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, बोल लो, बट क्या एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस रहता है कि अरे यार, एसिडिटी के लिए क्या हमको डॉक्टर से पूछना. अ, तो वो थोड़ा नेग्लिजेंस बोल सकते हैं, एक्चुअली नेग्लिजेंस भी नहीं, की थी, थोड़ी दवाइयाँ ली थी बेसिक जो भी होती हैं. और फेब में अचानक से थोड़ा वेट लॉस हुआ क्योंकि खाना बहुत, मतलब डाइट बहुत कम हो गई थी. अगर पहले 2.5-3 रोटी अपन खा पा रहे हैं, तो अब शायद 2 रोटी खा पा रहे थे. तो वी थॉट कि चलो अभी अब तो 1 महीना निकल गया है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, एसिडिटी बंद नहीं हो रही इवन आफ्टर मेडिकेशंस, तो लेट अस रीच आउट टू सम अदर डॉक्टर. तो वहीं से हमने डॉक्टर को रीच आउट किया थ्रू फ़ोन, और तब तक ये कोविड वाला थोड़ा सा मार्च तक आ चुका था. देन एक
एक सोनोग्राफी करवाई थी कि कहीं कुछ है तो नहीं अंदर या कुछ ऐसा, तो सोनोग्राफी वाज ऑल क्लियर, कुछ भी ऐसा था नहीं। तो डॉक्टर said it's a case of hyperacidity, so she was given medication of hyperacidity। तो वही चलती रही एंड फाइनली थोड़ा कभी रिलीफ हो जाता था, कभी थोड़ा, बट एज सच कुछ समझ में नहीं आता था कि अंदर से एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट वीकनेस है, फटीग है, थोड़ा थकान हो रही है, ऐसा सब लगा रहता था। देन लॉकडाउन हो गया, सो ड्यू टू लॉकडाउन सब कुछ बंद था, इवन डॉक्टर्स भी रेजिस्ट कर रहे थे एंड कोविड के अलावा कोई केसेस उस टाइम पे ले नहीं रहा था। तो फिर मैं मुंबई में अटकी हुई थी, तो इस चीज़ में कि मैं कैसे वहाँ से इधर आऊँ, इस सब में हम लगे थे एंड इट टुक ऑलमोस्ट 2 months for me to arrange everything कि उस टाइम में इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश नहीं आ पा रही थी, तो मैं आई थी 10th मई को एंड देन आई सॉ कि मेरी मम्मी बहुत ही वीक लग रही है, इतना ज़्यादा वेट क्यों रिड्यूस हो गया है, समझ में नहीं आ रहा था। शी वॉज ईटिंग बट डाइट थोड़ी कम हो गई थी, तो हम उन्हें फ्रूट्स वगैरह भी देते थे, ये सब सब चल रहा था बट थोड़ा कम कम चल रहा था। तो आई सेड व्हाई नॉट एक और बार जाके पर्सनली डॉक्टर को आप मिल के आओ। बट उस टाइम हम सब इतने डरे हुए थे कि कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रहा था, स्पेशली हॉस्पिटल्स में कोई जाना नहीं चाह रहा था। तो शायद वो एक नेग्लिजेंस हुई या क्या हुआ, या शायद ऐसा ही होना था। तो अगर कोई मतलब जिन तक भी मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलूँगी, आपकी बॉडी आपको पूरे सिम्टम्स देती है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि इवन आफ्टर मेडिकेशंस अगर आपकी एसिडिटी सही नहीं हो रही है, हाइपर एसिडिटी की आपने मेडिकेशंस ले ली फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी and you need to reach out to doctor as soon as possible. So this hyperacidity was the first symptom which we saw. The second symptom was loss of weight. बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया था, I think maybe more than 10 kgs she lost. So that was the second symptom. थकान तीसरी, ऑब्वियसली क्योंकि आपने वेट रिड्यूस किया है तो थकान तो आपको होएगी, क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी में कुछ तो डैमेज हुआ ही है। तो थर्ड सिम्टम वाज लॉस ऑफ वेट, दैट वाज इक्विवेलेंट टू 10 to 15 kgs. देन ऐसा नहीं है कि हम मेडिकेशंस नहीं दे रहे थे, देने पर भी कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर फाइनली वी रीच्ड आउट टू अ डॉक्टर कि क्या है क्या नहीं है, नहीं हो रहा है सही। तो फिर उनने उससे भी एक हाई डोज वाली दवाइयाँ दी, पूरी प्रॉपर मेडिकेशंस चल रही थी, और फिर उन्हें ये बोला कि मे बी इट्स ड्यू टू अल्सर्स। तो वी थॉट हो सकता है यार कि अब ये शायद अल्सर्स के कारण हो रहा हो, क्योंकि गर्म लगी हो दवाइयाँ इतनी या क्या। तो फिर उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई। उसकी जब मेडिकेशन स्टार्ट हुई तो डॉक्टर सेड गिव अ लिक्विड डाइट, मतलब खिचड़ी दो, दाल का पानी दो। तो शी स्टार्टेड ऑन दैट, जूस सूप ये सब हम उन्हें देते थे। एंड आई थिंक 12th या 13th मई से जो डॉक्टर के हमारे चक्कर लगने स्टार्ट हुए हैं, तो टिल अगस्त वी वर जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। तो 13-14 मई को फिर दिखाया, फिर मेडिकेशन चेंज हुई, अल्सर्स की दवाइयाँ स्टार्ट हुई, लेकिन तब तक फिर डायरिया होने लगा। आई मीन लूज मोशंस जैसे दिन में 2-3 बार हो जाते थे। तो दिस वाज द आई थिंक 5th सिम्टम कि लूज मोशन स्टार्ट हो जाना। तो जब हमने डॉक्टर को फोन पे ही कंसल्ट किया कि लूज मोशंस हो रहे हैं अभी, तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों एग्जैक्टली हो रहा है। और उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि और किस डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये हमारे पहचान के डॉक्टर थे। तो वी थॉट कि शायद दिन से बात करने पे हमें सही हो। तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो वी थॉट कि अच्छा
तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया हीमोग्लोबिन का आप टेस्ट कराओ। तो जब हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन वाज 6। यूजुअली लड़कियों में 12, मिनिमम बोलो तो मैं बोलूँ 10 भी कम है, 12 तो आप रखो ही। तो हीमोग्लोबिन वाज जस्ट हाफ, 6 आ चुका था। तो दिस वाज द 6th सिम्टम कि जैसे ही टेस्ट हुआ 6 पे आया। तो डॉक्टर सेड कि ये तो बहुत कम है। तो आयरन शॉट्स दिए गए, इंजेक्शंस दिए गए, सब कुछ दिया। हीमोग्लोबिन जो है वो 7.5 आया। उसके बाद ब्लड चढ़ाया, आई थिंक 4 यूनिट ब्लड चढ़े थे। उसके बाद भी हार्डली वो 8 तक पहुंच रहा था। तो दिस इज अगेन वन मोर थिंग कि ये एक और चीज है जो डायग्नोज नहीं हो पाती कि अगर इतनी सारे हमने यूनिट्स चढ़ा दिए, हमने आयरन के 3 इंजेक्शंस लगवा दिए तो भी आयरन नहीं बढ़ रहा है। दिस वाज अनदर सिम्टम। तो फिर डॉक्टर ने सोचा कि पता नहीं ऐसा ये इंटरनली कुछ तो नहीं है। देन ही आस्क्ड फॉर आई थिंक कोई दवाइयाँ वगैरह दी थी या क्या दिया था। उसके बाद एक दिन माय मदर टच्ड हर स्टमक। तो नेवल के पास राइट साइड में शी फेल्ट कि कुछ है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, शिवानी तुम एक बार टच करके तो देखो। तो मैंने जब टच किया तो मुझे लगा कुछ तो है, बट थोड़ी देर बाद मैं टच करूं तो वो गायब हो जाता था। तो इट वाज नॉट समथिंग विच वाज कंसिस्टेंट, बट अपन को लगता है यार कुछ लग रहा है, बट फिर गायब। तो ये एक और चीज थी जो हुई, और मेरी मम्मी ने शायद डॉक्टर को ये बताया नहीं और हमें भी नहीं बताया था। तो ये एक और नेग्लिजेंस हुई थी। उसके बाद फिर मैंने बोला मम्मी ये आपने बताया क्यों नहीं है डॉक्टर को, तो फिर हम इस हिसाब से आगे डॉक्टर सोचेगा ना, आप क्यों नहीं बता रही हो। तो शी सेड कि यार मैं ये कैसे बताऊं कि ये मेरा पेट देखो। अब क्योंकि वो हमारे रिलेटिव थे डॉक्टर, तो मे बी शी वाज शाय टू शो कि ऐसा है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है, आप कभी हेजिटेट मत करो अपने डॉक्टर से शेयर करने में। कितनी भी आपकी इंटीमेट प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज अपने डॉक्टर को बताओ। ये मेरा एक और मैसेज है। तो फिर उसके बाद जब ये मुझे बताया गया तो मैंने ये चीज़ पापा को बताई कि ऐसा कुछ हुआ है, और मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा बताया। तो आप एक काम करो, आज जाओ डॉक्टर के पास और आप जो है उन्हें बता दो। तो गए, फिर उन लोगों ने सीटी स्कैन सजेस्ट किया। तो सीटी स्कैन में ऐसा दिखा कि देयर इज समथिंग, कुछ है वहाँ। तो उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था एक सीटी स्कैन भी होना, क्योंकि सब एमआरआई और ये सब बंद था उस टाइम पे। फिर उसके बाद फिर भी डायग्नोज नहीं हुआ कि एग्जैक्टली अभी क्या करना है। ये दिख तो रहा है बट क्या। तो फिर डॉक्टर ने एंडोस्कोपी के लिए सजेस्ट किया। तो जब एंडोस्कोपी की तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि एंडोस्कोपी इज स्टिल स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वाज इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर जब एंडोस्कोपी में नहीं निकला तो माय मॉम वाज वेरी हैप्पी कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही होगा कुछ, मैं तो सही हूँ। देन फिर डॉक्टर सजेस्टेड कि नहीं, वी फील कि दिस इज नॉट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको कोलोनोस्कोपी करवानी पड़ेगी। तो कोलोनोस्कोपी जब करवाई तो उसमें दे फाउंड समथिंग कि अब यहाँ पे कुछ दिखा है कोलोनोस्कोपी के थ्रू। तो उससे डायग्नोज हुआ कि कुछ है। देन बायोप्सी हुई। तो बायोप्सी की रिपोर्ट आई थिंक 3-4 दिन लगते हैं या शायद ऐसे कुछ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तब तक इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी टू एनल। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम भी ऐसे कि हाँ ठीक है, अभी जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमें वो सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो
मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है और पापा हैं। तो ये हमारे लिए आई थिंक इट वाज अ स्ट्रेंथ, माय सिस्टर वाज स्ट्रेंथ कि शी यूज्ड टू हैंडल हॉस्पिटल इन डे टाइम, मैं जाती थी रात में कभी। तो ऐसे करके वी समहाउ मैनेज। तो फिर सर्जरी हुई एंड देन सर्जरी वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्टिक था कि वो रिमूव नहीं हो पाया। तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर सेड कि हमको लार्ज इंटेस्टाइन को काट के उसको एक दूसरा पाथ देना पड़ा एंड जो वो पार्ट था उसको लोकलाइज वो वहीं पे ही था। तो डॉक्टर सेड आफ्टर कीमो ये जब श्रिंक हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है दोबारा सर्जरी करके रिमूव कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि कैंसर आया है बायोप्सी की रिपोर्ट में बिकॉज माय डैड डिड नॉट टेल मी। फिर मुझे याद है जिस दिन सर्जरी हुई मैं गई हॉस्पिटल और मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी। मैंने कहा क्या है आप मुझे बताओ। तो मेरे पीछे एक स्क्रीन थी, उन्होंने मुझे बोला पीछे देखो और मैंने जब पीछे देखा तो दिखा मुझे कि ट्यूमर है। तो और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्यूमर है। तो उन्होंने मुझे सब बताया कि योर मॉम इज डायग्नोज्ड विद कोलन कैंसर। तो मेरे लिए मतलब मैं उसी दिन शायद हार गई थी क्योंकि आई हैव सीन माय मौसी, शी वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर इन 2015। तो मेरे लिए मैंने उनकी पूरी जर्नी देखी है, तो मैं उसी दिन मैंने हार मान ली कि अब पता नहीं क्या होगा। फिर सबसे ज़्यादा एक चैलेंज होता है कि कैसे आप सामने वाले को बताओगे कि उसको कैंसर है। बहुत ज़्यादा टफ होता है कि ये बोलना कि मम्मी आपको कैंसर है। तो माय मॉम वाज अ केयर गिवर फॉर माय मौसी, so she knew everything, what is chemotherapy, what is radiation, what are the other factors, बाल जाएंगे, ये होगा, she knew each and everything। तो मुझे पता था कि अगर हम इनको डायरेक्टली बता देंगे कि मम्मी तुमको आपको कैंसर है तो शी लूज ऑल होप बिकॉज शी हैज सीन एवरीथिंग। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि केयर गिवर थी मेरी मम्मी मौसी के टाइम पे और शी हैज सीन ऑल दिस एंड शी नो व्हाट कैंसर इज और क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, वी सजेस्ट कि आप जो है अपनी मतलब कुछ दिन में मम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे बिकॉज ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी चल भी नहीं पा रही थी। तो 15 डेज शी वाज इन आईसीयू। तो बोला कि थोड़ा उनको रिकवर कर जान दो, देन ओनली वील स्टार्ट विद कीमोथेरेपी। तो बोला कि हम अभी नहीं बताते, हम थोड़े टाइम बाद इन्हें बताएंगे। सो दोज 15 days वर वेरी टफ, वेरी वेरी टफ कि आप अपनी मम्मी को जाके आईसीयू में देख रहे हो और आपको पता है कि ये कैंसर हुए से सरवाइव कर रही हैं। आई से फाइट कर रही है, मैं सरवाइव या पेशेंट ये मैं कभी बोलना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जो भी कैंसर जिनको हुआ है दे आर ऑल फाइटर्स फॉर मी, दे आर ऑल फाइटर्स। तो मैंने एक मतलब मुझे पता है मैं बाहर रो रही होती थी और जब मैं अंदर आईसीयू के जाती थी तो मुझे हंसना पड़ता था, स्माइल देनी पड़ती थी। अरे हाँ मम्मी सब ठीक है, सब सही हो जाएगा, देखो अब तो ऑपरेशन हो गया है। तो मुझे एक थोड़ा क्योंकि कुछ कुछ उनको खुश रखने के लिए मुझे भी बोलना पड़ता था। दो आई लॉस्ट ऑल होप्स, ऑल होप्स, बट उनकी जो स्ट्रेंथ है, उन वो जितनी स्ट्रांग उस टाइम पे रही, उस चीज़ ने मुझे वापस खड़ा कर दिया कि नहीं अब मम्मी के लिए लड़ना है। क्योंकि मम्मी तो सह रही है, हम तो कुछ नहीं सह रहे। वो एक पर्सन जो सारी जगह पूरे ट्यूब्स लगे हुए हैं, कुछ खा नहीं पा रहा, हम तो खा पा रहे हैं, हम सब चीज़ें कर पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। और जो इंसान एकदम चलते चलते बेड पे आ गया, तो अगर वो हार नहीं माना तो हम कैसे मान जाए हार। तो मैं हमेशा हंसते हुए जाती थी और हमेशा हंसते हंसते मम्मी को कुछ बोल दिया, कुछ
एक आध कुछ किसी की फनी बात सुना दी और वो स्माइल दे देती थी, तो मेरे लिए उतना काफ़ी रहता था। जब हॉस्पिटल में थी मुझे पता है कि जितने लोग अभी शायद हॉस्पिटल जा रहे होंगे, हमारे लिए भी उस टाइम बहुत टफ टाइम था क्योंकि कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में हार्डली ही कोई आपको सपोर्ट करने आएगा। बहुत कम लोग होते हैं कि उस टाइम पे, क्योंकि और ज़्यादा था कि स्प्रेड हो रहा है, तो बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं चलो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे बुआ फूफा जी मिले जो पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक हमारे लिए खड़े रहे। मतलब वॉज डे 1 एंड डे तो भी बोलूँगी एंड व्हेन दे वर देयर। और ऐसा नहीं कि केवल हॉस्पिटल में विजिट करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी, क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर हॉस्पिटल जाती थी, मैं घर संभालती थी और मेरे पापा भी हॉस्पिटल में ही रहते थे, तो मेरे लिए ये रहता था कि मैं घर संभालूं। अब पूरे दिन मैं घर पे क्या करूंगी, तो मैं यूजुअली अपने ऑफिस से मैंने छुट्टी नहीं ली थी, ना मैंने किसी को बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है। और मैंने शायद अपने बस मैनेजर को बताया था कि इफ इन केस मेरे को कभी छुट्टी लेनी पड़े या कुछ होना पड़े तो मैं लूँगी। तो इतना मैंने बस बता के रखा था और बाकी मैंने किसी को कुछ शेयर नहीं किया था। इवन अपने फ्रेंड्स में भी हार्डली 1-2 फ्रेंड्स को बताया था कि मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ है। जब कैंसर जैसी कोई बीमारी आती है तो यूजुअली हमें यही लगता है कि इसके बारे में बात कैसे करें, बताएं कैसे, अपने फ्रेंड्स को कैसे बताएं या हमारे रिलेटिव्स में कैसे बताएं। तो मैं जितने भी लोग अगर मेरा ये जो वीडियो अगर देखते हैं, तो अगर आप किसी को जानते हो जो कैंसर से डायग्नोज हुआ है, तो उनके लिए इतने पॉजिटिवली आप उनको सपोर्ट करो कि उनको कभी शाय नहीं फील हो ये चीज़ बताने में। मतलब वो आपसे इतने कंफर्टेबल हों कि वो आपको ये चीज़ शेयर कर सकें। तो फिर ऐसा था कि क्योंकि मेरे बुआ फूफा जी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमको। घर में सपोज ग्रॉसरीज हैं, मैं कहाँ अकेली भगूंगी, तो दे यूज टू सेंड ग्रॉसरीज कि ये प्रॉपरली सैनिटाइज ग्रॉसरी हमने तुमको भेजी है, ये यूज़ कर लेना। तो इतनी भी अगर आपको कोई हेल्प कर दे कि शिवानी तुम यहाँ से हॉस्पिटल जा रही हो, अच्छा यहाँ से लंच लेती हुई चली जाना। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हो तो आप उन्हें ऐसे मदद कर दो। तो जितने भी लोग हैं, अगर हम हमेशा चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें या जो कैंसर फाइटर्स हैं हम उन्हें सपोर्ट करें, तो मेरा यूजुअली लोगों से यही कहना है कि आप छोटी छोटी चीज़ें करके भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमारी मम्मी वापस आई, देन उनका पेट स्कैन होना था। तो शी डिड नॉट न्यू पेट स्कैन क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे मौसी के टाइम पे पेट स्कैन नहीं हुआ था, तब नहीं था। तो आई रिमेम्बर बंसल हॉस्पिटल में पेट स्कैन हुआ था और उसमें स्टेज 1 ही डायग्नोज हुआ था, मतलब लोकलाइज्ड ही है। तो 2 दिन बाद हमें, जिस दिन पेट स्कैन हुआ, मतलब आज मम्मी आई, कल पेट स्कैन हुआ और उसके नेक्स्ट 2 डेज में डॉक्टर ने बोला कि कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इट विल बी लेट। अब वो जो 2 दिन थे हमारे लिए इतने ज़्यादा चैलेंजिंग थे कि इन्हें हम बताएं कैसे कि इन्हें कैंसर है और इनको अब कीमोथेरेपी के लिए जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने नहीं बताया था। डॉक्टर ने ये बोला था कि आप बताओ। तो समवेयर वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे नहीं पता, मैं शायद वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो 2 दिन मेरे कैसे गए, कैसे बताएंगे। मैं और पापा और मेरी छोटी बहन हमेशा अलग से जाके डिस्कस करते रहते थे कि मम्मी को कैसे बताना है, कैसे बताना है। तो वी यूज्ड टू फिगर आउट कि यार ऐसे तरीके से बताना चाहिए जिस तरीके से हम शायद डायरेक्टली उतने अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो देन पापा के एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, तो हमने उनके थ्रू जो है वो उनको हमने घर पे बुलाया था एंड
he told my mom that अभी आगे कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। तो मैं लिटरली शॉक्ड हूँ, मतलब मैं 2 दिन से ये रो रही थी सोच सोच के कि हम मम्मी को कैसे बताएंगे। और जब मम्मी को पता चला तो मम्मी ने कहा अरे यही मैं चाहती थी कि नहीं हो, और अब देखो ऐसा हो गया, मुझे कीमो लेना पड़ेगा। बिकॉज शी डिड नॉट न्यू कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है, ट्यूमर रिमूव नहीं हो पाया है। तो हमारे लिए ये था कि यार हम लोग रो रहे हैं और ये देखो, मतलब शी इज सो स्ट्रॉन्ग कि मतलब कहाँ से आया इतना विल पावर। तो हमने कहा, हम लोग बहुत खुश थे कि चलो अब फाइनली ये रेडी है, हम लोग एक स्टेप और चढ़े और अब तो अब फाइट करना ही है, कुछ भी हो जाए, मतलब अब छोड़ना नहीं है, विल जस्ट विन दिस एवरीथिंग। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया कि हाँ मम्मी रेडी है कीमोथेरेपी के लिए, कल हम फर्स्ट कीमो के लिए आ रहे हैं। तो ही सेड कि चलो ठीक है ऐसे करते। अब वो थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड हुआ, बुआ फूफा जी घर आए, सब हम लोग बैठे हुए थे कि होप नहीं अपन अपन सब कर लेंगे, अपन सब मैनेज कर लेंगे। तो उस टाइम पे मम्मी ने एक ही चीज़ बोली, आई थिंक बहुत सारे जो लोग कीमो पे जो लोग कीमो स्टार्ट करते हैं उनका हो सकता है आधे लोग ये सोचते हो कि मम्मी ने बोला था कि मेरे बाल चले जाएंगे। तो यूजुअली लड़कियों को थोड़ा अपने हेयर से बहुत ही प्यार होता है, और मेरी मम्मी थोड़ी सी बहुत कॉन्शियस रहती थी वो, मुझे प्रॉपरली ड्रेस होना है, मुझे मैचिंग ये चाहिए। तो ऐसा पर्सन जिसने शुरू से लेके अब तक पूरा वो प्रॉपरली ड्रेस होके बिल्कुल रहा है, तो उसके लिए कि मेरे बाल चले जाएंगे वो पूरी मेरे और एकदम सैड हो गई। तो उस टाइम पे मेरे पापा के एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद हैं। तो मेरे पापा ने ये कहा था कि मेरी मम्मी का नाम मीना था, तो बोला था मीना मुझे तुम्हारे बाल नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो शी गॉट वेरी हैप्पी, शी वाज स्माइलिंग। मैं वो दैट स्माइल वाज लाइक वेरी प्राइसलेस। मतलब मैं बता नहीं सकती कि ऐसी सिचुएशन में भी अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग रह के स्माइल कर रहा है तो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अब ये मुस्कुरा रही हैं तो कल एक पॉजिटिविटी के साथ जो है वो जाएंगी। और मैं रोज प्रे करती थी, डेली मैं प्रे करती थी कि सही हो जाए, मम्मी सही हो जाए, जो भी आगे सिचुएशंस हैं थोड़े सही हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि यूजुअली मेरी यहाँ पे एक गलती ये थी कि मैं चीज़ें बहुत जल्दी शेयर नहीं करती हूँ। आज मैं आपके सामने भी बोल रही हूँ, आई थिंक मेरे लिए 1 साल बाद वही चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप शेयर करो, चीज़ें शेयर करो आप जिसको चाहते हो। और अगर आप ऐसा फील करते हो कि मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है तो आप लिख लो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप वेंट आउट करते हो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, तो यू फील अ बिट लाइटर। दूसरा ये, आप किसी से भी हेल्प लेने से कतराओ मत, किसी से भी। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, छोटी सी भी अगर आपको हेल्प चाहिए कि यार ये चीज़ में क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो, कोई ना नहीं बोलेगा आपको, उस टाइम पे कोई ना नहीं बोलेगा। बट यूजुअली क्या रहता है कि हम लोग खुद इतने ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारे पास सोचने का समय नहीं रहता। तो हेल्प इन द सेंस मेरी गलती ये हुई थी कि जो हॉस्पिटल रहता था वो 20 किलोमीटर्स दूर था, यहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर था। तो मैं टू एंड फ्रो करती थी अपने एक्टिवा से, तो मुझे पता है मेरे लिए कितना ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता था। इंस्टेड मेरे दोस्त लोग मेरी हेल्प करना चाहते थे, बट मैंने ही उनसे हेल्प नहीं मांगी। तो अगर उस टाइम मैंने ये हेल्प मांग ली होती कि यार तुम घर से जो है मेरे को खाना ला दो, या एक बार का ही तुम इतना कर दोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मना करेगा इस चीज़ में। तो मैं ये फील करती हूँ कि आपको जब हेल्प लगे आप बोलो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं आप खुद एग्जॉस्ट हो जाओगे। एंड फॉर अ केयर गिवर इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो जितने सारे केयर गिवर्स अगर मेरा ये वीडियो देखें,
तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप हमारे फाइटर्स के का ध्यान तभी रख सकते हो जब आप अपना ध्यान रखोगे, और अपना ध्यान आपको प्रॉपरली खा के, प्रॉपरली पी के, प्रॉपरली रेस्ट लेके। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मेरा रेस्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अगर सो रही हूँ, मुझे सुबह आके यहाँ का काम करना है, मुझे ऑफिस करना है, रात को खाना बना के मुझे वापस जाना है। ये तो मेरे बुआ फूफा जी, आई फील वेरी लकी कि दे आर सो अंडरस्टैंडिंग कि वो खुद ही कुछ चीज़ें पिक कर लेते थे कि यार शिवानी खाना ले जाना। तो मुझे पता है कि यार अब खाने का टेंशन नहीं है, फटाफट मैंने ऑफिस बंद किया, मैंने घर के थोड़े काम निपटाए, मम्मी की दलिया बनाई या जो भी बनाना है वो सब लेके मैं उधर। और मैं यूजुअली प्रेफर करती थी कि मम्मी का खाना मैं खुद बनाऊँ, तो मैं वो प्रेफर करती थी कि मेरे यहाँ से ही जाए, मैं ही बना के जाऊँ। बाकी जो मेरा खाना रहता था, या घर पे पापा और बहन अगर हैं उनका खाना रहता था, तो मैं वो हेल्प ले लेती थी। तो मम्मी की 2 फ्रेंड्स हैं, उनने भी काफ़ी मदद की। वो भी मैं जब अकेली रहती थी तो मुझसे बात करने आ जाती थी। तो यूजुअली हमें ऐसे ही रहता है, जब हम अकेले रहते हैं, हमारे पास कुछ बात करने को नहीं रहता है, तो शायद नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो केयर गिवर्स have to take care of themselves also. It is equally important to eat well, to sleep well, to do something for yourself also which you like. क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होती थी, तो फिर मैं क्या करती थी, थोड़ी देर म्यूजिक लगा लिया मैंने, अगर 2 भजन सुन लिए तो मेरे लिए वो भी एक रिलैक्सेशन हो जाता था। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। फर्स्ट कीमो सक्सेसफुली हो गया, और 3-4 दिन बाद फिर डिस्चार्ज दे दिया गया था। और आई थिंक फर्स्ट कीमो कुछ जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून एंड में कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली डेट रिमेम्बर नहीं है। उसके बाद फिर मम्मी घर आई थी कुछ ऑलमोस्ट कीमो के 4-5 दिन बाद। तो जब वो घर आई तो 15 डेज हमारे साथ रही थी, एंड देन फिर वो नेक्स्ट कीमो के लिए गई, एंड शी नेवर रिटर्न। तो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग था। जब हॉस्पिटल में थी, आई थिंक सेकेंड कीमो के लिए गई थी 30th ऑफ जुलाई को। तो मैं जब हॉस्पिटल जाती थी, मेरे पास आज भी, मैंने क्योंकि आपने मुझे बताया था तो मैंने निकाल के रखा है। मैं जब भी जैसे फर्स्ट कीमो से जब वापस आई थी, तो मैं ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स उनको बना के देती थी। आपको दिख रहा है ये? स्ट्रॉन्ग तो मम्मी मैं, लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, तो मैं ऐसे जैसे वेलकम, आपको शायद ये दिख रहा होगा, वेलकम टू होम स्ट्रॉन्ग मम्मी, और ऐसे छोटा सा कोई पिक्चर बना दिया। तो मैं थोड़ी सी ऐसी थोड़े क्रिएटिव आइडियाज ढूंढ के लेके आती थी। कभी हॉस्पिटल जाती थी तो हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, और अभी भी मानती हूँ। बीच में मुझे ऐसा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा शायद भगवान पर से ही विश्वास उठ गया था, लेकिन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हनुमान जी को मानती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे हनुमान जी के वो जो हनुमान चालीसा के श्लोक जो हम चैंट करते हैं, वो मैं लिख के जाती थी। तो मैं ऐसी ही कुछ कुछ चीज़ें क्रिएटिव करती रहती थी। फिर मम्मी एक दिन बोलती थी, यार मैंने बहुत दिन से हाथ नहीं जोड़े हैं, तो किसी दिन मैं कार्ड वाले एक हनुमान जी वो अपने साथ ले जाती थी। तो मैं कहती थी, मम्मी कल आपने बोला ना हाथ नहीं जोड़े कहीं, तो मैं उन्हें दे देती थी कि ये लो, खुद आ गए। तो ऐसे करके मैं ट्राई करती थी अपने साइड से कि मैं खुद भी खुश रहूं और उस टाइम इन्हें भी खुश रखूं। और छोटे छोटे ऐसे चिट्स बना के जाती थी कि कुछ अच्छा लिख दिया उस पे। एक हनुमान चालीसा का एक 2 लाइन्स आती हैं कि नासे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो इसका मतलब आपके जो भी रोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये ऐसी चीजें लिख के देती थी। हॉस्पिटल में रहते थे तो मुझे याद है कि मम्मी तो कुछ खा नहीं पाती थी, हार्डली ही दलिया का पानी या कुछ दाल का पानी, ऐसा कुछ। तो उस टाइम पे ये दिख रहा है मुझे कि मेरी मम्मी कुछ नहीं खा रही है और मुझे खाना पड़ता था।
तो जितने केयर गिवर्स हैं, पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार मेरी मम्मी नहीं खा रही और मैं इनके सामने कैसे खाऊं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन मुझे ये दिखता था कि मेरे को अगर मेरी मम्मी को यहाँ से उठाना है तो पहले मुझे चलना पड़ेगा। तो मुझे अगर 2 रोटी की भूख लगती थी, मैं 3 रोटी खाती थी, जान करके कि नहीं मुझे इनको संभालना है। और फिर उस पे मेरी मम्मी भी कहती थी कि तूने ढंग से खाया क्या, क्योंकि मेरे को संभालना है तो तेरे को तो खाना ही पड़ेगा, मैं नहीं खा पा रही तो तू ही खा ले। तो शी वॉज लाइक, मतलब एंड तक वो इतनी ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना बबली, उनका नेचर बहुत ही बबली था। शी वॉज वेरी सोशलाइजिंग पर्सन। तो वैसे ही उन्हें एंड तक, मैं जब उन्हें देखती थी कि ऐसे हंस रही हैं, ये कर रही हैं, तो मुझे लगता था यार इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है तो कर जाएंगी बिल्कुल। और फिर फिर यही सब हुआ एंड देन फाइनली एंड डे आई थिंक चीजें बिगड़ती गई। और एक और चीज ये रहती थी कि जब आपको रहता है ना, आपके थोड़े होप्स बढ़ते हैं कि हाँ यार डॉक्टर आ रहा है और अब आपको एक अच्छी न्यूज़ सुना रहा है कि चलो आपकी मम्मी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है या ये है। ऐसा एक दिन नहीं हुआ होगा जब डॉक्टर आया हो और उसने अच्छी न्यूज़ सुनाई हो। तो दैट वाज वेरी हार्ड टाइम, क्योंकि हम बाहर रहते थे, डॉक्टर आता था, वो बताता था कि किडनी पे इम्पैक्ट आ गया और हमें अंदर जाके मुस्कुराना पड़ता था कि सब सही है। तो ये दिन भी हमने बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था कि मैं शायद नहीं एक्सप्रेस कर सकती पूरी चीज़ें जो मैंने फेस की हैं। बट आई फील मैं आपको इतना भी बता पा रही हूँ, आई फील कि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इस चीज़ के लिए ओपनली शायद 1 साल बाद किसी से शेयर कर पा रही हूँ। तो हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि भगवान, आगे क्या होना है वो तो हमें नहीं पता, लाइफ इज टोटली अ मिस्ट्री। बट अगर आप किसी भी चीज़ से फाइट कर रहे हो तो उसको बिल्कुल अपनी स्पिरिट जी जान लगा दो और छोड़ दो कि क्या आगे होना है। आगे तो हमने किसी ने नहीं देखा, बट अगर लड़ रहे हो तो ऐसे लड़ो फिर कि कोई स्टोन आपका अनटर्न नहीं है बस। 2-3 चीज़ें मैं एज अ केयर गिवर जब मैं थी, मैं करती थी और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितने केयर गिवर्स हैं बस ये 2-3 चीज़ें करें। पहला, अपनी डाइट का ध्यान रखें। मुझे पता है उस टाइम पे हम कैसे खाएं, क्या खाएं, ये बहुत सोचने को आता है कि जब हमारे जो भी हैं, जो कैंसर फाइटर्स हैं, वो नहीं खा पा रहे हैं हमारे घर में, लेकिन हमें खाना पड़ रहा है। तो आप खाओ, बिल्कुल खाओ, क्योंकि आप चलोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो आप उनके लिए कुछ कर पाओगे। दूसरी चीज़, जब मम्मी घर में थी 15 डेज के लिए, हम सब भजन लगा देते थे। जैसे सबका ऑफिस टाइम खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, और मेरी मौसी भी लकीली यहाँ आई हुई थी, तो मौसी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब मैं उस 15 डेज शायद अकेले नहीं रहना पड़ा उस टाइम में। और जो एंड का टाइम था तो शी ऑल्सो सपोर्टेड सो मच कि आई थिंक आपकी फैमिली से आप हेल्प मांगो, कभी कतराओ मत, आपके फ्रेंड से हेल्प मांगो, अपना ध्यान रखो। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन। अगर आपको ये जो जो भी इन चीज़ों का स्ट्रेस आता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या होना है, आगे क्या होना है हमें नहीं पता, बट मैं ऐसा मानती हूँ मेडिटेशन से आपकी लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। आपके जो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस है वो थोड़े, मैं नहीं बोलूँगी बंद हो जाएंगे, नहीं बंद तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं जब अकेले थी मुंबई में, मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं अकेले थी, मेरे सारे रूममेट्स चले गए थे, तो मेरे पास कोई बात करने को नहीं था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे लाइफ में ऐसा मेरा एक फ्रेंड है संकल्प, जिसने मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया मेरे लाइफ में। तो सिंस 2020 अप्रैल से मैं मेडिटेशन करते आ रही हूँ और अभी मुझे 1 साल हो गया है। और
इस 1 साल में बीच में छूट गया था मुझसे, लेकिन आई फील कि वो मेडिटेशन ने मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाया है, इमोशनली काफ़ी स्टेबल बनाया है। पहले मैं ऐसी थी कि अगर मैं शायद इतना बोल देती तो मैं रो देती, तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल बनाया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने मेडिटेशन मेरे लाइफ में लाया। और मेडिटेशन आप करो, आपको जो चीज़ें पसंद हैं, थोड़ी बहुत बुक रीडिंग अगर किसी को पसंद है तो आप वो करो, बुक सुन लो, तो एक पॉजिटिव माहौल आपके आसपास बनाए रखो। और जो जैसे मम्मी घर में थी तो हम भजन लगा देते थे, फिर सब आराम से बैठ के चाय पीते थे और उन्हें कोकोनट वाटर देते थे कि भाई आपको चाय नहीं, आप कोकोनट वाटर पियो बिकॉज दिस इज हेल्दी फॉर यू। तो फिर उन्हें पुरानी चीजें याद दिलाते थे, मम्मी हम गोवा गए थे तो आपको याद है ऐसा हुआ था, मम्मी हम यहाँ गए थे। तो क्या होता था कि वो आपका जो ऑरा है वो अच्छा हो जाता था। मम्मी की 2-3 फ्रेंड्स आती थी उनसे मिलने, तो वो जब आती थी तो हम थोड़ा डिस्टेंसिंग से बिठाते थे, थोड़ा दूर बिठाते थे, और हम हर किसी को अलाउ नहीं करते थे क्योंकि ऑब्वियसली कोविड था। बट क्या रहता है कि अगर हम डबल मास्किंग तो हम तब से ही कर रहे हैं सब, ये डबल मास्किंग अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पर हम तब से ही डबल मास्क यूज कर रहे हैं। और हम ये मेक श्योर करते थे कि अगर कोई भी मम्मी के पास जा रहा है, पहले तो सब मम्मी के पास नहीं जाते थे, अगर कोई जा रहा है तो वो प्रॉपरली डबल मास्क से जाता था। तो यूजुअली मैं ही होती थी जो जाती थी। तो आप ध्यान तो रखो ही, साथ में एक ऑरा क्रिएट करो, क्योंकि जो फाइट कर रहा है आपको नहीं पता। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं बताती थी, आज तक शायद उनने ये नहीं बोला दर्द हो रहा है या ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है, कुछ नहीं। शी नेवर cribbed about anything, she was just smiling till the end day. तो कीप स्माइलिंग, मतलब आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट बना दो कि वो सामने वाला ही एंजॉय करने लग जाए, उसको लगे ही नहीं कि उसने क्या अभी अपने लाइफ में फेस कर रहा है वो। और जो चीज़ें पसंद हैं आप वो करो, थोड़ा बहुत अपने हॉबीज को 10-15 मिनट टाइम दो। और अगर वो भी नहीं दे सकते तो मेडिटेशन तो प्लीज़ आप 10 to 15 मिनट्स करो, दैट विल हेल्प यू एज वेल एज द पर्सन जो आपके घर में जो भी डायग्नोस्ड हैं अगर कैंसर से, तो उन्हें भी मेडिटेशन करवाओ। आप सब साथ में बैठ के करो, दूर दूर बैठ जाओ और आप उनको मेडिटेशन करवाओ। तो मैं अपनी मम्मी को भी अप्रैल से ही, जब मेरे फ्रेंड ने मुझे करवाया तो मैंने यहाँ घर पे पास किया कि नहीं नहीं आपको सबको मेडिटेशन करना है, तो हम लिख के भेजते थे डन डन। तो क्या रहता था कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ भाई मैंने तुमसे पहले कर लिया है, अच्छा इधर से अच्छा हाँ हमने कर लिया है। तो ऐसे मम्मी रोज फोन करती थी कि अरे तुमने मेडिटेशन किया क्या, मैंने कहा हाँ मम्मी सुबह ही कर लिया, आपने क्या क्या, नहीं नहीं हम शाम वाला करेंगे। तो ऐसा रहता था। जो हमारे कैंसर फाइटर्स हैं उनके लिए मैं तो पहले ही बोलती हूँ आप लोग तो बहुत स्ट्रांग हो, मैं शायद कुछ सजेस्ट करने लायक भी नहीं हूँ आपके लिए। लेकिन मैं एक ही चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि मैंने मेरी मम्मी को देखा है, शी वॉज शाय एवरी टाइम, मतलब शी वॉज ऑन बेड। और यूजुअली जब हम बेड पे रहते हैं, आई नो कि आपको मतलब कुछ लोग जो चल नहीं पा रहे हैं, आप डाइपर्स यूज करते होगे या कुछ, तो आप अपने बच्चों से शर्माओ मत। मतलब जब बच्चे छोटे थे आपने उनके डाइपर्स चेंज किए हैं, तो नाउ अब उनका टाइम है तो आप शर्माओ मत। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोती थी कि कन्या से कैसे हम करवाएं, लड़की से नहीं करवाते हम, ऐसे ऐसे। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलती थी, मम्मी जब हम छोटे थे तो आपने किया ना, तो अब हमारा टाइम है तो हमें करने दो, ठीक है। जब आप चलने लगोगे तब करने लगोगे, आप खुद करना, और मैं चाहती हूँ आप खुद करो, लेकिन जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ हमें करने दो, आप उस चीज़ में शर्माओ मत। तो सबको मैं यही बोलूँगी कि आपके बच्चे ही आपके लिए हैं, तो आप उनसे शर्माओ मत। आपको कुछ भी लगे बच्चों से शेयर करो। अगर आपके बच्चे दूर रहते हैं या कुछ, तो आप अपने जो भी करीबी आप मानते हो, जिनको आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, आप उनको बिल्कुल शेयर करो। और मैं लास्ट बार फिर से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप कभी कतराओ मत। क्योंकि मुझे याद है, मेरी एक और फ्रेंड है,
बचपन से मेरी फ्रेंड है इतिशा। तो आई थिंक ना मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। आई थिंक लाइक फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, राइट, जैसे बोलते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ऐसे लोग मेरे लाइफ में आए हैं। बट मेरी फ्रेंड इतिशा है, उसने शुरू से लेके आज तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे शायद डेली जब मैं अकेले रहती थी तो डेली उसको फोन करना है और नॉर्मल चीजें बात करना है। अच्छा मैं आ जाऊं क्या तेरे से मिलने, तू अकेले है क्या? तो वो खुद से ही कभी आ जाएगी, कभी कुछ करेगी, नहीं आ पा रही है तो फोन कर देगी। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो अगर वीडियो देखें तो प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को या उनके पेरेंट्स अगर इस चीज से गुजर रहे हैं तो उनके लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी आप खड़े नहीं होगे तो आई थिंक आपके फ्रेंड को बहुत जरूरत है उस चीज की। तो मैं कभी बोलती नहीं थी कि यार मेरे को कोई बात करने को चाहिए या तू आ जा यार, आज मम्मी की सर्जरी है, मैं अकेले हूँ घर पे तो कैसे होगा। तो ये सब चीजें क्या रहता है कि हम बोल नहीं पाते हैं उस टाइम पे। बट मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को ऐसी फ्रेंड मिली कि जो आई, उसने मुझे हर दिन सपोर्ट किया। इवन मेरी मॉम एक्सपायर हो गई उसके बाद भी शी यूज्ड टू कम डेली और काफ़ी ज़्यादा मुझे उससे सपोर्ट मिला। मेरे रिलेटिव्स से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि एटलीस्ट उस टाइम में जब हमें ज़रूरत थी तो हमारे आसपास लोग खड़े हो गए। तो आई थिंक दैट्स इट। Rani, I have no words. Matlab, I'm so thankful that you decided to share this with me, with us. Matlab, your journey as a caregiver, it's so emotional and it's so inspiring. I can't even tell you. थैंक You यू। are really strong. You are strong. Your mother was strong. I have no words. Honestly, and I thought कि मैं ना usually मेरे को questions होते हैं, but right now after listening to your journey I have no questions. आपने इतना अच्छा सम अप किया, आपने हर चीज बताई कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं पूछने को। चलो थैंक यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स समबडी। अगर एक पर्सन भी आई मीन एक पर्सन को भी हेल्प हो जाती है इससे तो आई थिंक आई हैव डन माई पार्ट। आई थिंक मैं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी। मैं जेन ऑनको से मैं आई थिंक 2018 से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि आई थिंक डिम्पल हमारे ऑफिस आई थी and she told her story about how she lost his husband and what happened. तो उस टाइम से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी कि यार हाउ स्ट्रॉन्ग दिस लेडी इज यार, मतलब क्या स्पिरिट है इनकी, मतलब शी इज सो स्ट्रॉन्ग विल पावर, शी हैज सो स्ट्रॉन्ग विल पावर। और उसके बाद मैं जेनॉनको से जुड़ गई तो मैं हमेशा चाहती थी कि यार कुछ कभी मुझे मौका मिले इनके साथ मिलने को, इनसे बात करने को, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जर्नी नहीं थी। बट आई रिमेम्बर कि एक वो पर्सन का मुझे नाम याद नहीं है, बट हाउ ही सर्वाइव्ड कैंसर। तो उसको शायद जॉ का कैंसर था और आई वाज सो इंस्पायर्ड कि यार नहीं यार ये इन लोगों से मुझे बात करनी है, क्योंकि मैंने अपनी मौसी को उस टाइम खोया था तो आई न्यू कि कैंसर में कैसे होता है। बट इतना डीप मुझे कुछ नहीं पता था। बट और मैंने शायद फिर कभी सोचा भी नहीं, मैं जस्ट पेजेस लाइक कर दिए थे, मैं वीडियोस देख लेती थी या कुछ हुआ। बट क्या होता है जब तक आप पे आती नहीं है ना आप कुछ नहीं करते हो। तो उसके बाद जब मेरी मम्मी को डायग्नोस हुआ तो मैं सबसे पहले जेन ऑनको पे गई और वहां से मैंने कुछ कुछ वीडियोस निकाले, ढूंढे कि मैं ये मम्मी को दिखाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली उतना हमें टाइम ही नहीं मिला, मतलब डायग्नोस होने के बाद उतना हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने जिस दिन मेरी मम्मी को डायग्नोस हुआ और मैंने देखा कि विल पावर अच्छा है, ये फर्स्ट कीमो करा के अच्छे से आई है, तो मैं उस दिन, हम बोलते हैं ना हम जो सोचते हैं वो होना चाहिए वैसा। तो मैंने उस दिन ये सोचा था कि यार जिस दिन मेरी मम्मी कैंसर फ्री होगी उस दिन मैं जेन उनको वालों को खुद रीच आउट करूंगी। और आई थिंक मैंने डिम्पल को भी एक बार मैसेज किया था। तो मैंने कहा मैं खुद इनको रीच आउट करूंगी कि यार मेरी मम्मी का इंटरव्यू लो तुम। और
बताओ कि ये कितनी स्ट्रांग है, तो शायद जो दूसरे फाइट कर रहे हैं वो भी इनको देख के कुछ इंस्पिरेशन ले। तो वो तो कभी पूरा हो नहीं पाया, बट एक दिन आपका मैसेज आया और मुझे पता नहीं है, हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा या कुछ। मैं शायद इतना बिलीव नहीं करती ये सब में, लेकिन बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और आपने मुझे रीच आउट किया। देन आई डिसाइडेड इफ नॉट माय मॉम व्हाई शुड आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। Thank you for sharing this journey. I wish I was taking your mother's interview, but I'm glad that I took your interview. I'm really thankful कि आपने मुझसे ये आपकी journey, आपकी story, आपकी life share की है. Thank you from zenonco.io and Love Heals Cancer. मतलब I literally have no words कि मैं आपको क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, पर really thankful. Thank you so much for giving this opportunity. I'm It's glad really part बन पाई आपकी story का. same here. I really wish कि आप अपने सारे dreams achieve करो. I will pray hard. Even I am a Hanuman ji bhakt, so Okay. I will Thank pray you. hard. I always say कि कुछ भी आपके लाइफ में हो जाए, don't stop praying. Prayers have power. क्योंकि मुझे याद है एक दिन ऐसा नहीं होता था, सॉरी मैं शायद फिर से बोल रही हूँ, नहीं, you can continue. मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा सा ना एलिमेंट, जैसे मैं कहा मैं वो कार्ड्स बनाती थी। तो क्या करती थी कि जब मैं पूजा कर रही रहती थी, मैं अपने सामने जल रखती थी और उसमें तुलसी डालती थी और सबकी बॉटल्स में मैं वो थोड़ा डाल के सबकी बॉटल्स फिल करके रखती थी। और जब मैं मम्मी के पास जाती थी, मैं उनको देती थी, मम्मी जल लाई हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता उस जल ने स्ट्रेंथ दी होगी मम्मी को इतनी कि वो इतना भी फाइट कर पाई और एक आंसू नहीं आया उनकी आंखों में इस चीज को झेलते हुए। और शायद हमें भी स्ट्रेंथ दी और अभी भी दे ही रहे हैं कि it's a big loss to lose your parent, but she was strong. So I feel कि मैं क्यों रोऊं जब वो नहीं रोई। तो I feel I am also strong. You are strong. Keep smiling all the time. You are very strong. I'm sure, may her soul rest in peace, but I'm sure she's happy right now to see you so happy and smiling. Yes. Thank you, Shivani, for doing this. Really, thank you. Thank you for Thank you, coming to this Ritika. platform. I'm glad that I met you through this. Even I'm glad that I met you.